My precious friend, मेरे अति प्रिय अनमोल दोस्तों, as we continue the Lenten meditations, जब हम उपवास काल के मनन को जारी रखे हैं, let's read from Matthew 16:21 to 28. तो आइए हम मत्ती 16 और 21 से 28 पढ़ेंगे। Jesus spoke about his sufferings well ahead of time. बहुत ही समय से पहले यीशु ने अपने दुखों के बारे में बता दिया था। He knew that he came to die. वो जानता था कि वो मरने के लिए आया है। He had offered himself as a sacrifice for the salvation of all humanity. पूरी मानवता के उद्धार के लिए उसने अपने आप को एक बलिदान के रूप में So अर्पित किया था। he knew that there was a time coming when he would have to sacrifice his life. और वो जानता था एक समय आने पर उसे अपना जीवन उत्सर्ग करना होगा। And he also knew that he would rise up on the third day और वो ये भी जानता था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। after he would sacrifice himself. अपने आप को बलिदान करने के बाद He would come alive वो जीवित हो जाएगा and be the savior of the whole world to everyone who calls on the name of Jesus to be saved. और हर एक उस व्यक्ति के लिए जो यीशु का नाम पुकारे कि वो उसके द्वारा से बच जाए, वो जगत का उद्धार करता ठहरेगा। And let's read this portion. तो आइए हम इस खंड को पढ़ते हैं। Matthew 16:21 to 28. मत्ती 16:21 से 28 वचन। From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed, and on the third day be raised to life. उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said. This shall never happen to you. इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी न होगा। Jesus turned and said to Peter, Get thee behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। Then Jesus said to his disciples, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? My precious friend, मेरे प्रिय मित्रों, Jesus came to give his life on the cross to save everyone's soul from sin and the curse of sin. प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया ताकि वो क्रूस पर अपने प्राणों को उत्सर्ग करने के द्वारा इस संसार के हर एक मनुष्य को उद्धार दे। And everyone who denies themselves and gives their life to Jesus and follows him shall be his child. और हर एक जो अपने आप का इंकार करता है, अपना क्रूस उठाता है और यीशु के पीछे हो लेता है, वो परमेश्वर के संतान होगा And shall be his disciple. और वो उसका चेला भी होगा। For this Jesus Christ has suffered. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया है। What are the sufferings which Jesus went through? वे कौन कौन से दुख हैं जो यीशु ने उठाए? Mark 10:45 says, मरकुस 10 वचन 45 कहता है, Jesus did not come to be served as the King of Kings and the Lord of Lords, but to serve and to give his life as a ransom for many. प्रभु यीशु अर्थात मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ाई के लिए अपना प्राण दे। He was not to be honored as a big Guruji.
उसे एक महान गुरु के रूप में आदर पाने की आवश्यकता न थी। He came to offer himself as a sacrifice. वो स्वयं अपने आप को बलिदान करने के लिए आया। Yes, Jesus came to sacrifice himself. हाँ, यीशु स्वयं अपने आप को बलि देने के लिए आया। In John 10 and verse 18, यूहन्ना 10 और उसके वचन 18 में Jesus says, "No one takes it from me, but I lay down my life on my own accord." कोई भी मेरा प्राण नहीं लेता, लेकिन मैं अपनी इच्छा से अपने प्राण को उत्सर्ग करता हूँ। Pilate cannot take my life from me. पिलातुस मेरा प्राण मुझसे नहीं छीन सकता। The high priest cannot take my life from me. महायाजक मुझसे मेरा जीवन नहीं छीन सकता। I have come to give my life to save everyone and to give them life to live in this world. लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि अपना जीवन दूं और इस संसार के लोगों को I have बचाऊं। authority to lay down my life and the authority to take it up again. मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपना प्राण निछावर कर सकता हूँ और उसे वापस भी ले सकता हूँ। That is the power of Jesus Christ. यही तो प्रभु यीशु की सामर्थ है। He came to serve वो सेवा करने by आया, giving himself as a sacrifice, स्वयं को एक बलिदान के रूप में देने के giving द्वारा, his life as a ransom एक छुटकारे की कीमत के रूप में अपने for प्राण देने us के to द्वारा, be saved. ताकि हम जो है बच जाएं। And he had the power to give his life and to rise up from the dead. उसके पास ये अधिकार था कि वो अपने प्राणों को उत्सर्ग करे और उसके बाद वो मृतकों में से भी जी उठे। What are the sufferings that he went through for us? वो कौन कौन से दुख है जो प्रभु यीशु ने हमारे खातिर उठाए। Isaiah 53 and verse 6. यशायाह 53 और वचन 6 में The iniquity of all of us, our sins were laid upon Jesus. हम में से हर एक के पाप और अधर्म का बोझ यीशु के ऊपर में डाल दिया गया। The scripture says, शास्त्र कहता है, we all like sheep have gone astray. हम सब तो भेड़ों के समान भटक गए थे Each one of us has turned to our own ways. और हम में से हर एक ने अपना अपना रास्ता ले लिया था And we have committed iniquity. और हमने अधर्म के काम किए, We have committed sin, हमने पाप किए, going our own way, which is not the ways of God. अपने ही रास्ते पर चलकर, जो कि परमेश्वर का बताया रास्ता नहीं। But God laid all our iniquity on Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर ने हमारे सारे अधर्म को यीशु के ऊपर में डाल दिया। He bore all our iniquities. उसने हमारे सारे अधर्म को उठा लिया। And as the iniquities of every person in the world who lived in the world before Jesus and who lived in the world during the time of Jesus and who would live after the time of Jesus was laid upon Jesus. और यीशु से पहले रहने वाले, यीशु के तत्कालीन लोग और यीशु के बाद जितने भी लोग आएंगे, उन सब के अधर्म का बोझ यीशु पर डाल दिया गया And it crushed him. और इस बोझ ने यीशु को कुचल डाला। Isaiah 53:10. यशायाह 53 और वचन 10 के अनुसार, Yes, it was the Lord's will to crush him हाँ, परमेश्वर को ये भाया कि उसे कुचले and cause him to suffer. और उसे दुख उठाने दे। And though the Lord made his life an offering for sin, और जो भी प्रभु ने अपना जीवन पाप बलि करके दे दिया, he will see his offspring and prolong his days. वो अपनी पीढ़ियों को देखने पाएगा और बहुत दिन जिएगा। Yes, my friend. हाँ मेरे प्रिय मित्रों, The suffering of Jesus was not the betrayal, प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाना विश्वासघात नहीं था, was not the denying of Peter, his disciple, न ही वो पतरस के द्वारा उसका इनकार किया जाना था, was not the false witnesses, और न ही वो झूठे गवाह थे, was not the beating on his head, न ही उसके सिर पर मारा जाना था, was not the nails on the cross, न ही वो कीलें थी जो उस क्रूस पर डाले was गए, not carrying the cross in shame, न ही उसका क्रूस का उठाना था, was not just being in shame on the cross naked, यह केवल क्रूस पर नंगा लटक करके शर्मिंदा होना नहीं था, was not just darkness surrounding him on the cross, और न ही केवल क्रूस के ऊपर उसे अंधकार का छा जाना था, but it was the crushing that came upon his soul when the iniquities of all of us, the darkness caused by the iniquities of all of us, was laid upon Jesus. लेकिन ये तो कुचला जाना था जो उसके प्राणों के ऊपर उस समय आया जब हर प्रकार के अधर्म के कारण से यीशु के ऊपर में वो सारा अंधकार जो है आ पड़ा और वो कुचला गया। Oh, that crushed him. इससे वो जो है कुचल डाला गया।
That's when he cried, my God, why have you forsaken me? इसलिए वो पुकार करके कहता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? When sin comes into our hearts and iniquity rises up through our actions, we feel so lost. जब पाप हमारे हृदय में आ जाता है और हमारे अधर्म जो है बढ़ते जाते हैं, हमें लगता है मानो हम कहीं खो गए हैं। We feel there is no one who can save us. हमें लगता है मानो कोई नहीं जो हमें बचा सके। It is for us as we go through it. और ये तो केवल हमारे लिए है जब हम उससे गुजरते हैं। Jesus suffered. यीशु ने भी दुख उठाया। All our iniquities and the iniquities of billions of people were laid upon Jesus. हम में से हर एक के अधर्म और सारे लोगों का धर्म उस पर डाल दिया गया। And he was crushed. और वो कुचल डाला गया। Crushed on the cross. क्रूस पर कुचला गया। Carrying the sins of everyone as a sacrifice. और एक बलिदान के रूप में हर एक के अधर्म को अपने ऊपर लेकर के उसने उत्सर्ग किया। The next suffering he went through is found in Isaiah 53:12. उसका अगला दुख का उठाया जाना यशायाह 53:12 में पाया जाता है। Therefore I will give him a portion among the great. इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग And he will दूंगा divide the spoils with the strong. और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, Because क्योंकि he poured out his life into death उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया and was numbered with the transgressors. वह अपराधियों के संग गिना गया, For he bore the sin of many तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ and उठा made लिया intercession for the transgressors. और अपराधियों के लिए विनती करता है। My friend, मेरे मित्र, the wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। So Jesus went through death to destroy the wages of sin and to save us from the death caused by sin. इसलिए प्रभु यीशु को मृत्यु से गुजरना पड़ा ताकि वो पाप की उस मजदूरी को जो कि मृत्यु है उससे हमें बचा ले। He bore the sins of everyone उसने हर एक के पापों को अपने ऊपर उठा लिया and made intercession for us. और हम में से हर एक के लिए वो मध्यस्थता की प्रार्थना करता Even है। today in Hebrews 7:25, आज भी इब्रानियों 7:25 में हम पाते हैं, Romans 8:34, रोमियो 8:34 में भी Jesus is making intercession for us, यीशु हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, saying, "O Lord, कहता है, हे प्रभु, do not allow your son, your daughter to be crushed because of his or her iniquity." उसके अधर्म के कारण से मेरे किसी भी बेटे या बेटी को तू मत कुचल डालना, I have paid the price. क्योंकि मैंने वो दाम I चुकाया है। have been made a ransom मैं तो उनके लिए वो दाम बन गया for था them to be free from their sins. जिसके द्वारा से वो अपने पापों से छुट जाए। Forgive them. उन्हें क्षमा कर, Forgive them. उन्हें क्षमा कर। Jesus even today cries for us. आज भी यीशु हमारे लिए रोता है। Let us repent and turn to Jesus आज हम पश्चाताप करके यीशु के पास and में make his heart so glad. जो उसके हृदय को बहुत आनंदित He करता will है, cleanse us with his blood वो अपने लहू से हमें धोएगा and he will transform us as his child. और हम में से हर एक को अपनी संतान में बदल देगा। And the next suffering और अगला दुख उठाना in Isaiah 53:5, यह शायद 53:5 में है। Jesus was pierced for our transgression. हमारे ही अपराधों के लिए वो घायल किया गया, He was crushed for our iniquities. हमारे अधर्म के निमित्त वो कुचला गया। The punishment that brought us peace was upon him, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी and by his wounds we are healed. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। Our transgressions and iniquities, हमारे अपराध और हमारे अधर्म, for both transgressions and iniquities means ये जो अपराध और अधर्म होते हैं, इन दोनों का मतलब है, one is knowingly committing sin, एक जो हम जानबूझ करके पाप करते हैं the other one unknowingly committing sin. और दूसरा अनजाने में किया गया पाप। But Jesus was pierced and crushed for both for us. लेकिन प्रभु यीशु मसीह दोनों ही प्रकार के पाप के लिए हमारे लिए क्रूस पर कुचला गया। He took it gladly upon himself उसने आनंद पूर्वक उसको अपने ऊपर ले लिया for us to be free from iniquity and transgression. ताकि हम जो है पाप, अधर्म और अपराध से बच जाएं। And when we have iniquity and transgressions, लेकिन तो भी हमारे अपराध और अधर्म होते हैं, we lose our peace. हम अपनी शांति खो देते हैं And that came upon Jesus. और वो यीशु के ऊपर आ पड़ी। He brought us peace. वह हमारे लिए शांति लाया, Peace with God परमेश्वर के साथ शांति and peace with our souls. और हमारे प्राणों में शांति। And he carried the wounds in his body.
और उसने अपने शरीर में उन जख्मों को लिया to bring healing to our sick bodies. ताकि हमारे रोगी शरीरों को चंगाई दे। Today you can be healed through the stripes of Jesus. आज आप यीशु के कोड़ों के खातिर चंगे हो सकते हैं। Jesus carries his wounds even today आज भी यीशु अपने जख्मों को लिए फिरता है in his body. उसके शरीर में, And he says, by my stripes, by my wounds, I will heal you when you call unto me. और वो कहता है मेरे उन जख्मों के द्वारा से तुम जो है चंगे हो जाओगे जब तुम मुझे पुकारोगे। There is hope for your healing, my friend, through Jesus Christ. यीशु के द्वारा आपकी चंगाई की आशा है मेरे प्रियो। Come to Jesus. आज ही आप यीशु के पास आए। And the next suffering, और अगला दुख उठाना जो है Isaiah 53:7. यशायाह 53:7 में Jesus was oppressed and afflicted, प्रभु यीशु को सताया गया, दुख दिया गया, yet did not open his mouth. तो भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। He was led like a lamb to the slaughter. भेड़ के समान उसे वध करने के लिए ले जाया गया, As a sheep before its shearers is silent, तो भी वो शांत रहा, वैसे ही जैसे ऊन कतरने के पहले भेड़ शांत रहती है, so he did not open his mouth. इसलिए उसने अपना मुंह नहीं खोला। You may have unjust, uncharitable acts of the wicked people against you. हो सकता है कि लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है या ऐसे गलत और अधर्म के काम जो है किए हैं। You may not be able to do anything. हो सकता है कि आज आप कुछ नहीं कर पा रहे They'll have all the power to crush you unreasonably. और अकारण गलत तरीके से उनके पास सारी सामर्थ्य आपको कुचलने की। They will depromote you. वे आपको अवनत They करेंगे, will remove whatever you have. जो कुछ आपके पास है वो सब छीन लेंगे। They will bring wrong judgments against you. वे आपके खिलाफ गलत निर्णय लेकर के आएंगे And they will do things to make you lose your name in society. और वो ऐसा करेंगे कि आप समाज में अपना नाम और अपनी इज्जत भी खो दें। And they will bring wicked people to unjustly break your heart. और वे दुष्टों को लेकर के आएंगे कि वे आपके हृदय को तोड़ें। But लेकिन Jesus went through that suffering for your sake. प्रभु यीशु आपकी खातिर पहले ये दुख उठा चुका है। He says today, और आज वो कहता है I have been oppressed. मुझे सताया गया, I was afflicted मुझे दुख दिया गया unreasonably अकारण ही, for no sin of mine, जिसमें मेरा कोई दोष नहीं था। humiliated, मुझे नीचा दिखाया गया, but I did not open my mouth. लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला। I allowed God to be the judge. मैंने परमेश्वर को न्यायी बनने दिया। I did not plead for myself. मैंने अपने लिए अपना पक्ष नहीं रखा है। In patience, my children, protect your souls. अपने धीरज में मेरे बच्चों अपने प्राणों को बचाओ। I know your agony. मैं तुम्हारी पीड़ा को जानता हूँ। I will help you. मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। I will do justice. मैं न्याय करूँगा I will do it quickly. और मैं उसे शीघ्र ही करूँगा। Luke 18:7 and 8. लुका 18:7 और 8 में। And when the justice comes, और जब न्याय आएगा you'll have double portion of praise and honor. तुम दूने हिस्से के साथ प्रशंसा और आदर पाओगे। Let not your heart be troubled. तुम्हारा हृदय जो है व्याकुल ना हो। Jesus has paid the price for our shame, unjust criticism, unjust acts. हमारी शर्मिंदगी और हमारे खिलाफ में किए गए हर एक अधर्म और अन्याय के लिए यीशु ने कीमत And चुकाई so, है। He has the power to lift us up before the eyes of all these uncharitable and unjust and unreasonable people. और उसे उसके पास वो सामर्थ है कि हर एक के सामने वो हर एक इन अन्याय और अवैध कामों के कारण से जो लोगों ने हमारे साथ किया हमें ऊपर उठाए। He will lift you up. वो आपको ऊपर He उठाएगा, will do वो justice. न्याय करेगा, He has suffered for it. क्योंकि उसने उसके लिए दुख उठाया है। Praise Him for that. उसके लिए आप उसकी प्रशंसा करिए। And Isaiah 53 and verse 2. और यह शायद 53 और उसके वचन 2 में हम पाते हैं, He had no beauty उसकी कोई सुंदरता न थी or majesty और न उसकी महिमा थी to attract us to Him. कि वह अपनी ओर हमें खींचे। Nothing in His appearance would make us desire Him. उसके रूप में ऐसा कोई आकर्षण नहीं था कि हम उसे देखना भी पसंद करें। Yes, as Jesus was crucified on the cross, कुरूप के रूप में यीशु क्रूस पर चढ़ गए। His face was marked, उसका चेहरा तो कुरूप हो गया था, full of wounds. घावों से भरा हुआ। All His beauty was gone. उसकी सारी सुंदरता चली गई थी। Even today, you may have lost all your beauty, आज भी शायद आपने अपनी हर एक सुंदरता खो दी है। all your honor, आपका सारा आदर आपने खो दिया है and you may be suffering और शायद दुख उठा रहे हैं because of sickness, उस रोग के कारण से, because of shame. उस शर्म के कारण से जो आपके जीवन में आया। The Lord knows that agony.
लेकिन यहोवा आपकी पीड़ा को जानता है। He has gone through that suffering. वो स्वयं उस दुख से गुजर कर आया है। No beauty, कोई खूबसूरती नहीं, no majesty, कोई भी रूप नहीं, nothing that would desire people to come to him. कुछ ऐसा नहीं जिसको लोग पसंद करते उसमें। But today, लेकिन आज he is the King of Kings, वो राजाओं का राजा है, full of beauty and holiness. सुंदरता और पवित्रता से परिपूर्ण, Millions are attracted to Jesus और लाखों आज यीशु की ओर आकर्षित होते हैं, because he paid the price for you. क्योंकि उसने आपके लिए वो कीमत चुकाई है। He will make you beautiful. वो आपको खूबसूरत बनाएगा। Ecclesiastes 3:11 says, सपोपदेशक 3:11 कहता है, he will make everything beautiful in its time for you. अपने समय पर वो आपके लिए हर एक चीजों को खूबसूरत बनाएगा। Do not be afraid. इसलिए बिल्कुल न डरें, Everything will be made beautiful. आपके लिए सब कुछ खूबसूरत बनाया जाएगा। The Holy Spirit is bringing that grace upon you right now. इसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर वो अनुग्रह ला रहा है। Every allergy is being healed. हर एक एलर्जी ठीक हो रही है, Every deformity is being made whole. हर एक विकृति सही की जा रही है, And everything in your life which has brought shame and resentment against you shall be set right by the power of the और Holy जिन Spirit. चीजों के कारण से आपके जीवन में शर्म और परेशानी आई है वो ठीक की जा रही है। You will be desired by all people in the days to come as God lifts you up. जब परमेश्वर आपको उठाएगा तो आने वाले दिनों में हर एक लोग आपको पसंद करेंगे। Everything you do will prosper. आपका हर एक कार्य जो है समृद्ध You होगा will have an honorable future और आप एक आदरणीय भविष्य को पाएंगे, because Jesus paid the price for that. क्योंकि उसके लिए यीशु ने कीमत चुकाई है। Don't be afraid. इसलिए बिल्कुल न डरें। And Isaiah 53 and verse 8. और यशायाह 53:8 में, By oppression and judgment he was taken away. अत्याचार करके दोष लगाकर उसे ले जाया गया, He was cut off from the land of the living. उसे जीवितों के भूमि से दूर कर दिया गया। My precious friend, मेरे प्रिय मित्र, the wicked oppression of the evil powers, शैतानी ताकतों के उस सताव के द्वारा Jesus went through it. यीशु उन सब से होकर गुजरा। On the cross, darkness surrounded him. और जब वो क्रूस पर लटका था, उसको चारों तरफ से अंधकार जो था वो घेरा हुआ था। And the Bible says in Hebrews 2:14 and 15, और इब्रानी 2:14-15 में बाइबल बताती है, as Jesus went through that darkness and the oppression caused by the devil, he destroyed the devil who has the power over death on the cross. शैतान के सताव के द्वारा से उस जिसके पास वो मृत्यु की सामर्थ्य थी, क्रूस के ऊपर शैतान को नाश कर दिया जिसके पास वो मृत्यु की सामर्थ्य थी। Colossians 2:14. कुलुसियों 2:14 में He triumphed over Satan victoriously on the cross and made an open show of उसने him. क्रूस पर शैतान के ऊपर में जय पाई और उसका खुल्लम खुल्ला उसने मजाक उड़ाया। And Satan, who separates people and brings oppression, Jesus brought them और together. शैतान जो लोगों को अलग करता और सताव को लाता है, यीशु ने उन सब को एक कर He दिया। suffered for it. उसने उसके लिए दुख Your उठाया। family life will come together. आपका पारिवारिक जीवन एक होगा। Yes, love will come and surround you. हाँ, प्रेम आ करके आपको ढांप लेगा And the demon powers which are oppressing you shall go in Jesus' name because he has suffered for और you. क्योंकि यीशु ने आपके लिए दुख उठाया है, शैतान की ताकतें जो आपको परेशान कर रही है चली जाएंगी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And next in Isaiah 53:9, और अगली बात यशायाह 53:9 में, he was assigned a grave with the wicked उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई and with the rich in his death, और मृत्यु में वह धनवान का संगी though he हुआ, had done no violence, जो भी उसने कोई उपद्रव न किया था nor was any deceit in his mouth. और न उसके मुंह से कभी छल की बात निकली। Jesus was crucified on the cross between two thieves, प्रभु यीशु मसीह को दो डाकुओं के बीच में क्रूस पर लटकाया गया, but when he died, लेकिन जब वो मरा he was laid in the tomb of a very rich man, तो उसे एक बहुत ही धनवान व्यक्ति के कब्र में दफनाया गया, a righteous man. एक धर्मी जन की कब्र में। My friend, do you say I have no place to live? मेरे मित्र, आप ये कहते हैं मेरे पास रहने की जगह नहीं, Wicked people are only around me. मेरे चारों ओर केवल दुष्ट लोग हैं। God will give you a wonderful resting place, परमेश्वर आपको एक अद्भुत आश्रय देगा। honorable resting place in this world, इस संसार में एक सम्माननीय शरण स्थान, and also an honorable resting place when you die. और आपके मरने पर भी एक सम्माननीय रहने का स्थान, That place will be heaven. और वो स्वर्ग होगा। Do not be afraid, इसलिए बिल्कुल भी न डरे, because Jesus went through the suffering in death. क्योंकि इसमें प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए दुख उठाया है। So in Matthew 19:29 and 30,
इसलिए मत्ती 19, 29 और 30 में when you leave everything of the world and follow Jesus, जब आप संसार की हर एक बातों को छोड़कर यीशु के पीछे आते हैं, Jesus, because he has suffered for you, will give you 100 times in this world. क्योंकि यीशु ने आपके लिए दुख उठाया है, वो आपको इस संसार में 100 गुना प्रतिफल देगा And he will give you eternal life. और वो आपको अनंत जीवन भी देगा। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल न हो। Father, पिताजी, we pray that all the suffering that you have gone through will yield 100% blessings in the lives of thy हमारी children. प्रार्थना है कि जितना भी दुख आपने उठाया है उसके कारण आपके संतानों के जीवन में 100% Help them आशीष to आएंगी। receive the sufferings that you went through, acknowledge it and honor you for it. उनकी सहायता करें कि वे आपके हर एक दुखों को प्रभु जी स्मरण करें, अपनाएं और उसका आदर करें। Help them to praise you for every suffering they went through. और प्रभु जी जितने भी दुख उन्होंने उठाए उसके बदले आपकी स्तुति करने में उनकी सहायता करें And let them enjoy the blessings thereof. और उसके बाद जो आशीष है उनका आनंद लेने दें। Let there be 100% blessings, होने दें कि 100 गुना प्रतिफल और आशीष उन्हें मिले, 100 times blessings, 100 गुना आशीष है and heaven open for thy children because of your sacrifice. और आपके उस बलिदान के कारण स्वर्ग आपके बच्चों के लिए खुले। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता God है। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।